जय हिंद। क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। All of you most welcome. If you like, share it and subscribe the same to others also. Spread this knowledge. This is for 9th class as well as for the GK of various classes. Now, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश, इसके बारे में बात करेंगे। भूगोल का चैप्टर है और इसमें भारत की प्रमुख लोकेशन बताई गई है। लोकेशन: इंडिया हैज़ ऑल 4 मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ: माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट एंड प्लेट्यूज एंड आइलैंड। प्रमुख रूप से विश्व में हम पर्वत श्रृंखलाएँ देखते हैं, मैदानी भूमि, रेगिस्तान, पठार या द्वीप समूह होते हैं, और भारत हैज़ ऑल मेजर फीचर्स। In India, the soil colors varies from place to place as it is formed the different type of the rocks. India has varied physical features whose formation can be explained on basis of the theory of plate tectonics. According to the theory of the plate tectonics, the 7 major and minor plates that forms the earth crust keep moving, causing stress and thus leading to folding, faulting and volcanic activities. पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, बनी है, वो प्लेट्स के रूप में बनी है, और ये प्लेट्स एक दूसरे से टक्कर होती है, एक दूसरे के ऊपर जाती है, या फिर ये वॉल्केनिक ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है, और ये प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द वेरियस फिजियोग्राफिक डिविजन्स। जो भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश है उनके बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे ऊपर हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यूज, फोर्थ इंडियन डेजर्ट and the coastal plains, sixth is the islands. Himalayan mountains, the Himalaya mountains, young fold mountain which are the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, ये फोल्ड होने से जो गोंडवाना लैंड थी वो आई, उसने टक्कर दी थी, उसी वजह से जो है ये फोल्ड हुई थी और सबसे नई माउंटेन है। हिमालयस आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रेस्पेक्टिवली। हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर्स है, जो कश्मीर की तरफ 400 किलोमीटर्स वाइड है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर वाइड होती है। द हिमालयस हैव 3 पैरेलल रैंक longitudinal extensor, namely the great or inner Himalaya, also called the Himadri, middle Himalaya or Himachal, then outer Himalaya or Shivali. 3 parallel ranges are there. Then Himalaya can be divided into 4 sections. Punjab Himalayas, it is between Indus River to Satluj River. Kumaon Himalayas between Satluj and Kali River. Nepal Himalaya between Kali and Teesta River. And Assam Himalayas, the eastern Himalaya, that is between Teesta and Dibang, the Sangpo River. This is the situation. Now northern plain, Uttari Maidan. Northern plains spread over an area of the 7 lakh square kilometer, 240 kilometer long and 240 kilometer to 320 kilometer in broad. The rivers that flows
to the plain from the mountains are involved in depositional work. Different in relief cause the northern plain to have 4 regions. जो उत्तरी मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है और इस भूमि की कुल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। रिवर्स जो बहती है इसमें वो प्लेन बनाती है। इस तरह से ये है। इसके 4 प्रमुख रीजन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भाबर lying at the foot of the Shivalik, a narrow 8 to 16 kilometer wide belt of pebbles, कंकर के जैसे होती है और ये शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों में जो दक्षिणी श्रृंखला है उसके पास पाई जाती है। तराई lying next to Babar, a wet and marshy area with wildlife and forests. Bangar, older alluvium plain which rises above the level of flood plains. बांगर जो फ्लड प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है, उसमें ऊंचाई का क्षेत्र होता है और ये भी उपजाऊ होता है। खादर, यंगर एल्यूवियम ऑफ द फ्लड प्लेन्स, जहाँ पर बाढ़ आती है, पानी बहता है, पानी के साथ मिट्टी आती है, वो जमती है, ये खादर बनती है। तो बांगर एंड खादर। तराई जो ऊंचाई का क्षेत्र है जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह आए थे। नाउ let us move to the south, the peninsular plateaus. The peninsular plateaus is the turbulent forms due to the breaking and drifting of the Gondwana land. Gondwana land, Eurasia and Gondwana, 2 lands were there, and Gondwana's part is moving towards north and it hits to the Eurasia and forms this peninsula. The plateau consists of the 2 broad divisions, namely Central Highland and the Deccan Plateau Desert. The undulating sandy plains covered with the sand dunes, रेत के धोरे, बड़े बड़े धोरे towards the western margin of the Aravalli Hills is the Indian Desert. हमारे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला में एक है। इसकी पश्चिमी दिशा में बड़े धोरे आए हुए हैं, रेत के, रेतीली ज़मीन है। इसको हम लोग इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट भी नाम है इसका। क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स कॉल्ड बारंचस cover the large part of the Indian desert. Luni is the only large river in this region. Now, coastal plains. Narrow coastal strips flanks the peninsular plateau. समुद्र के किनारे पर जो तट आए हुए हैं वहाँ पर कुछ मैदानी क्षेत्र आए हैं, उनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ऑन वेस्ट ऑफ द कोस्टल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू Konkan between Mumbai and Goa, Kannad plains in Karnataka, and the Malabar coast of the northern to southern part. It is near in the Kerala and part of the Tamil Nadu also. On the east of the coastal strip is divided into northern Sarkars, Coromandel coast, and forms the southern part. पश्चिमी के बाद हम पूर्वी तट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो है नॉर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल तट कहलाते हैं। नाउ आइलैंड्स इज कंसर्न लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स इन द अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला। लक्षद्वीप आइलैंड्स वर फॉर्म्ड बाय फॉर्मली नोन एज द लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनीद्वीप। ये जो पुराने नाम है इनके अरब सागर में आया हुआ, केरल के नज़दीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर elongated chain of islands located in Bay of Bengal. Andaman and Nicobar Islands are an elevated portion of the submarine mountains. जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित एक चेन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, और ये जो है हमारे यहाँ एक सबमरीन के माउंटेन के रूप में आते हैं, जो पत्थर है, माउंटेन है जो समुद्र के बीच आए हुए हैं।
तो इस तरह से हमने भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों का डिस्कशन किया है। आपसे ये निवेदन है कि आप इन्हें रिवाइज करें, फिर से लें और इम्पोर्टेंट नोट्स को लिखें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।